So last time in this lesson we had completed discussion about the five kingdom system of classification. याद है सारे five kingdoms, right? Okay, so basically all the five kingdoms, they were divided based on two domains, prokaryota and eukaryota. You know? So first kingdom, what was the name? Monera. Monera, very good. Okay, unicellular prokaryotes. Second one, Protista. Third one, correct. Fungi. Fungi. Then plants followed by animals. है ना? तो plants और animals हमें अलग से डिटेल में पढ़ना है. Okay. So after five kingdom system, okay, तो R.H. Whitaker ने explain किया था. It was mentioned that all the organisms and all the species on the earth, okay, they needed to be incorporated into one or the other kingdom. इस तरह जो पहले टू किंगडम्स चलता था प्लांट्स एंड एनिमल्स का, नाउ दे वर चेंज्ड एंड दे वर इंक्लूडेड अंडर फाइव किंगडम्स. बट द थिंग इज कि उसके अलावा भी, मतलब बिसाइड्स द फाइव किंगडम्स, देयर वर सर्टेन क्रीचर्स और स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिजम्स वी कैन से, जो इन फाइव किंगडम्स में किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते. Like their structure, their lifestyle does not suit any of the five kingdoms. Okay, that was the main point, and that's the reason. So there are some groups of organisms, okay, which belong to a separate group itself, which is not under any one of these five kingdoms. Okay, तो उसमें से जिनको हम लोग कहते हैं acellular organisms. Okay, now when you say acellular, इसके पहले जब हम ऑर्गेनिज्म करके बोलते थे तो we used to say that every living organism is made up of cells, right? But there are certain organisms, okay, actually speaking organism बोलना भी correct नहीं है पूरी तरह से, because they are not made up of cells at all, but still they have a living material. उसमें से दो groups हमें study करना है. Okay, the first one is, now every human being on the earth is aware about this, okay, and that is virus, है ना? मार्च 2020 में जो शुरू हुआ, ओके, हर बच्चे को पता है कि वायरस क्या है. 2019 में वर्ल्ड में शुरू हुआ, इंडिया में मार्च 2020 में. इंडिया में फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन मार्च 2020, है ना? उसके पहले वर्ल्ड में शुरू हुआ था. तो दिसंबर में तो चाइना में वगैरह स्टार्ट हुआ था. तो ऑल दोस थियरीज आर स्टिल गोइंग ऑन एनीवेज, बट वी आर अवेयर नाउ व्हाट इज अ वायरस, राइट? एंड इसके पहले भी वायरस तो सबको पता ही था वैसे, right? We used to suffer from viral diseases, right? Animals used to suffer from viral diseases. Simple, जो अपना सर्दी जुकाम जो बोलते हैं, common cold, that is also a viral disease. Okay, so but that was not a very major one, and everybody used to get it at some time or the other in life, and 2-3 दिनों में वो ठीक भी हो जाता था, right? But this particular thing which is going on, okay, which has become everybody's enemy in the world, an invisible enemy, that's a virus. Okay, तो ये जो वायरस अभी चल रहा है, okay, we can explain this in based on the current scenario also. इसको हम लोग कोरोना वायरस करके बोल रहे हैं. This कोरोना वायरस was also existing earlier, but अभी जो आया है, जो वर्ल्ड में पेंडेमिक बना चुका है, this is the mutated version. इसमें हुआ है mutation, and that was the problem. Okay, so overall, basically, what is a virus? Why do we not classify this under any of the five kingdoms? The reason is, first of all, it does not have any cell. इसका सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है. Any virus is ultimately made up of only two components. Externally, there is a protein coat, जिसको बोलते हैं capsid. The protein coat is called capsid. And उसके अंदर होता है एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड, which is either DNA or RNA. That's it in a virus. Structurally, one protein coat, one nucleic acid. इन दोनों के वजह से वो हंगामा मचा सकते.
right? So these viruses are obviously, we cannot say that viruses are useful structures. Okay, first thing, viruses are supposed to be at the threshold of life. थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ का मतलब है कि वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है. Now how do you explain that? कि when the virus is inside a host, then it works as a living material. When it is outside, it's a non-living particle. ओके अभी जैसे पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से सबको बोला जा रहा है हैंड वॉश से हाथ साफ करो, सैनिटाइजर्स यूज करो वगैरह. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ये जो पार्टिकल्स है ये न जाने कहाँ कहाँ पे होगा. Like if you are going out by, you are traveling by auto, bus or something, you are taking support of the rod, the handles, and पता नहीं बाहर हम क्या क्या चीज छू लेते हैं. So those materials might have particles of these viruses. तो हम लोग ये सैनिटाइजर ये सब यूज करते हैं तो फोमाइट्स जिसको बोलते हैं, these particles, they are just washed off. तो उसको जितना हो सके हम अलाउ नहीं कर रहे शरीर के अंदर आने के लिए. Because once it enters inside, then it can cause havoc. मास्क लगाने को बोल रहे हैं. Why? Is it any fashion or something going on? उसमें फैशन निकाले वो अलग बात है. हर तरह के मास्क निकाले, right? But what is the reason behind this mask? How does it protect us? पार्टिकल नोज के अंदर नहीं जाता. हाँ, because it happens when you are outside. आइडियल तरीका जो है मास्क पहनने का वो है नाक भी कवर होना चाहिए. वो लोगों ने जो अलग अलग तो डिजाइन mask तो निकाले हैं वो ठीक है. अलग बात है. Right? You know very well. They are wearing masks hanging from the ears, right? They are covering their beards, right? कुछ लोग ऐसे सर के ऊपर भी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. So that is useless, right? Because your nose and the mouth should be covered. That's a major route by which these viruses can enter. And of course, you have to avoid the crowded places, going very close to people and all. So ये सब avoid करना. There are high chances the virus can get transmitted, right? तो ये viruses इस तरह से भी pass on हो सकते हैं. Okay, but here when we are learning about viruses in a broader sense, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैसे डिस्कवर हुए. Okay, ये जो नाम रखा गया वायरस, it was first given by Louis Pasteur. माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लुइस पास्चर. ओके, पास्चराइजेशन टेक्निक वगैरह डेवलप किए, राइट? सो द वर्ड वायरस व्हिच ही केप्ट वाज हैविंग द मीनिंग वेनम और अ पॉइजन. वायरस का मतलब ओके सी बैक्टीरिया में देयर आर यूजफुल बैक्टीरिया आल्सो, फंजाई में भी यूजफुल फंजाई भी है, बट वायरसेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल. दे आर ऑल डिसीज कॉजिंग either to plants or animals. In fact, viruses can cause diseases to bacteria also. Imagine. इसको बैक्टीरियल वायरस करके बोलते हैं कि वायरस ने उसको भी नहीं छोड़ा. ओके, तो एवोल्यूशन में जब ये डेवलप हुए, वायरस बन गए, तो इनका रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर सेल, दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, दे डू नॉट हैव द मेटाबॉलिक मशीनरी, कुछ नहीं है. दैट्स द रीजन दे आर जस्ट कैरिंग द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड कि कोई तो मुझे पनाह दे दो. ओके, उसके घर पे घुसेंगे, उसी का सामान यूज करेंगे, उसी के घर को तहस नहस करके निकल जाएंगे. ओके, सो व्हेन द वायरस विल एंटर अ लिविंग सेल, it will use the machinery of that host cell for its own reproduction. Viruses will multiply. Viruses का reproduction नहीं बोलते. Okay, they will just multiply. Nucleic acids का division होगा, many nucleic acids will be formed, and tiny viruses particles will be formed and they will be released. That's how they transmit. Okay, so because they do not have any cellular machinery as such, so they destroy the machinery of the host cell and then they duplicate. इसीलिए वायरसेस को बोलते हैं infectious nucleoprotein particles. Okay, because they are always infectious. They cannot be useful to any living cell. Okay. So as I said, based on the structure of the virus, okay, there are of three types. Okay, कौन से तीन types होते हैं? See, simply they are called as either plant virus or animal virus or bacterial virus.
ओके, प्लांट वायरस का मतलब है वायरसेस आर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वायरसेस आर वेरी वेरी होस्ट स्पेसिफिक. ओके, व्हेन यू से होस्ट स्पेसिफिक मतलब एनी वायरस कैन नॉट अटैक एनी ऑर्गेनिज्म. अभी ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो प्लांट्स में बीमारी करते हैं, तो वो अगर वायरस हमारे अंदर आ जाए तो हमें वो बीमारी कभी नहीं होगी. ओके, जैसे टोबैको प्लांट्स पे एक वायरस अटैक करता है, टोबैको मोजाइक डिसीज बोलते हैं. So that will affect only tobacco plants. Okay, leaf curl of tomato plant, that will affect only tomato plants. Animals में common cold, human beings में भी होते हैं. Okay, so when we get common cold, it is because of a particular virus. We call it rhinovirus. अगर ये वायरस प्लांट्स में गया तो प्लांट्स को कॉमन कोल्ड नहीं होते. कभी देखा है प्लांट्स के साथ में चल रहा प्लांट में छींक दिया जोर से? ओके, नॉट पॉसिबल, राइट? सो एवरी ऑर्गेनिज्म होस्ट इज डिफरेंट. तो अभी जो प्लांट वायरसेस है, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? See, whenever it is a plant virus, okay, it can have DNA or RNA, anyone as the genetic material. Okay, and in case of animal virus, they mostly have RNA as the genetic material. You must be aware about AIDS. AIDS का full form क्या है? याद नहीं आ रहा. It's, before Corona, that was another big pandemic. बट वो काफी हद तक कंट्रोलेबल भी है बिकॉज प्रिवेंटेबल है वो. हाँ, ये प्रिवेंटेबल एक्वायर्ड ही नहीं है. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है. ओके, एंड व्हाट इज अ वायरस नेम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स? HIV. यस, उसका फुल फॉर्म आता है. नहीं, एक तो स्टूडेंट फुल ने फॉर्म एग्जाम में में लिख दिया था हाई HIV इंटेंसिटी है, वोल्टेज. लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं है ना. तेरा आवाज थोड़ा लो HIV है. का HIV का फुल फॉर्म नहीं है ना. है ना? इट इज देयर, हम लोग को वेरी मच देयर. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, दैट इज HIV. तो ये जो एग्जांपल है एनिमल वायरस का, विच हैज ओनली RNA एज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, प्रोटीन कोट है सारे वायरस में, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड है. सो दैट इज आइदर अ DNA और एन RNA. तो दोज वायरसेस जिसमें सिर्फ RNA होता है उनको बोलते हैं रेट्रोवायरसेस. HIV is an example of a retrovirus. What about this COVID-19? Does it have DNA or RNA? RNA. It has got RNA. Okay, इसीलिए RT-PCR टेस्ट करवाते हैं ना. तो RNA का जो काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो फटाफट है, उसके RNA को डिटेक्ट करते हैं. ओके, किसी को अगर कोविड टेस्ट करवाना हो तो वो RT-PCR करवाते हैं, एंड दैट इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव. ठीक है. तो अभी दूसरा होता है अपना बैक्टीरियल वायरस. ये देख इसका स्ट्रक्चर. ओके, चलता फिरता स्ट्रीट लैंप लग रहा है. ओके, so it has got a protein coat. Okay, and it has got a core and a sheath, collar भी है, and this one can attack bacterial cells. बैक्टीरियल वायरसेस का दूसरा नाम है बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज. द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं, यू कैन सी इसके टेल फाइबर से देखना. ओके, टेल फाइबर्स को पकड़कर वो बैक्टीरिया के सेल को पकड़ सकते हैं. इट कैन अटैच इटसेल्फ टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया and then it will insert its DNA into the bacterial cell. फिर वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे. तो उसको लाइटिक साइकिल करके बोलते हैं, where the bacterial cells are destroyed. Okay, so like that you have to remember examples of viruses. तो अभी जैसे प्लांट्स में
जो डिसीज कॉज करता है वायरसेस वो है लीफ कर्ल डिसीज, ओके, येलो मोजाइक डिसीज, ये दो एग्जांपल याद रख सकते हैं, ओके। इन द केस ऑफ एनिमल्स रिसेंटली स्वाइन फ्लू करके आया था, पता है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, है ना, ये सब वायरल डिसीजेस है, ओके। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव स्मॉल पॉक्स, इवन पोलियो इज अ वायरस, पोलियो वायरस बोलते हैं, पोलियोमाइलिटिस इज द नेम, ओके। मम्स होता है, हर्पीज होता है, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिसीजेस, ओके। अभी बचपन में सबने पोलियो का वैक्सीन लिया, every child gets it and that's the reason you don't get polio in the entire life, right? तो ये जो वैक्सीन होता है, अभी कोविड-19 का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, राइट? व्हाट इज दिस वैक्सीन मेड अप ऑफ? वो क्या इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर? डेड ऑर्गेनिज्म पे भी, मतलब अगर कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस का वैक्सीन ले रहे हैं तो मतलब डेड कोरोना वायरस को ही हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं हाँ, ताकि मतलब बॉडी इनएक्टिवेटेड, वायरस द इनएक्टिवेटेड वायरल पार्टिकल्स इटसेल्फ, ओके। मतलब ऐसे वायरस को डाला जाता है जो बीमारी नहीं कर सकते बट वो सिर्फ अपने सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अपने शरीर में होता है इम्यून सिस्टम, ओके। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि लाइक इफ एट ऑल एनी सच पैथोजेनिक पार्टिकल एंटर्स अवर बॉडी, to some extent our body is able to fight it back। तो कोई इस तरह का हार्मफुल पार्टिकल अंदर आ गया तो अपने अंदर के जितने सोल्जर्स तैनात हैं दे विल गेट अलर्टेड कि घुसपैठी आ गया, भगाओ इनको या मार डालो, ओके। तो वो कौन है अपने सोल्जर्स? WBCs, the white blood cells, they produce something called antibodies, एंड ये जो पैथोजेंस होते हैं इनके सरफेस पे होते हैं एंटीजेंस, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का लड़ाई होता है, ओके, एंड दैट्स हाउ दे आर डिस्ट्रॉयड इन अ नॉर्मल कंडीशन। तो अब ये जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं हमें, इसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड वायरसेस को डाला गया अपने अंदर, तो इन देयर प्रेजेंस अवर बॉडी, मतलब अपने शरीर को नहीं समझ में आता, हम उल्लू बना रहे अपने शरीर को, ओके, कि वायरस आ गया, वायरस आ गया करके, मॉक ड्रिल जैसा, ओके। तो वायरस आ गया ऐसा पता चलता है तो अपने शरीर के एंटीबॉडीज जाग जाते हैं, WBCs, so they will release the antibodies in our system but they don't have anything to fight against, तो अपना एंटीबॉडीज तैयार है पहले से, that's how the vaccination works, कि अगर इसके बाद रियल में भी अगर वायरस आ गया तो अपने एंटीबॉडीज ज्यादा तैयार है, it will be able to fight back, बट okay? वो डेल्टा प्लस है कोविड का, कौन सा टाइप, उसमें वैक्सीन भी नहीं होता ना? डेल्टा प्लस ना, हाँ। ये तो पता नहीं, अभी कोविड-19 का तो अलग ही चक्कर चल रहा है, लाइक दे आर म्यूटेटिंग लाइक एनीथिंग, चमेलियन की तरह बिहेव कर रहा है, बार बार रंग बदल रहे हैं, राइट? कभी बंगाल वैरायटी आ रहा है, कभी ब्राजीलियन वैरायटी आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका वेरिएंट आ रहा है, गॉड नोस व्हाट इज हाउ इज दिस हैपनिंग, बिकॉज इट इज नथिंग बट म्यूटेशन, ये इतना म्यूटेट कर रहे हैं। बोल रहे कि चाइना ने बनाया, म्यूटेशन नहीं है। थोड़ा सा लो बात कर, जोर से बात करना, कम सुनाई दे रहे। चाइना ने ही बनाया, म्यूटेशन नहीं है ऐसा बोल बोल रहे। रहे हैं बट अभी तक कुछ भी ऑथेंटिकली कंफर्म नहीं हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस टू प्रूव कि ऐसा कुछ हुआ है करके, बट कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, दैट्स द मेन थिंग। बट एक चीज है, इसको जूनोसिस करके बोलते हैं, जूनोसिस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ सच वायरसेस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, ये आया है बैट्स से, बैट्स एंड पैंगोलिन्स, हाँ, ऐसा, खाया था ना वो लोग हाँ। ने। तो ये नेचुरली भी पॉसिबल है, आर्टिफिशियली भी बनाकर कर सकते हैं, ये कोविड-19 कैसे हुआ दैट वी आर नॉट श्योर नाउ, ओके। बट कैसा है ना कि बैट्स और पैंगोलिन जैसे एनिमल्स के शरीर में वैसे ही बहुत सारे वायरसेस हैं, अभी इसका कोरिलेशन हम कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के साथ, ओके। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, तो बहुत सारे जगह पे अर्बनाइजेशन वगैरह करने के लिए फॉरेस्ट का कटौती हो रहा है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जब ये एनिमल्स रहते हैं, फॉरेस्ट का छोटा छोटा हो जाने की वजह से नाउ दे आर कमिंग मोर क्लोज टू ह्यूमन बींग्स, कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, okay? तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस, ये बहुत पहले इसीलिए हमने एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने मास्क प्रेडिक्ट भी पहनने को किया था, मना किया था।
क्या बोली? अमेजोन जंगल है ना ब्राजील में, वो भी काटने मना किया था बिकॉज उसमें और भी ज्यादा न्यू न्यू टाइप्स के वायरस एंड ऑल। हाँ, यस, करेक्ट। तो अभी कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली पैंडेमिक वाले सिचुएशन में क्या बोला जाता है पता है, कि शुरुआत में जब नया शुरू होता है तो वेरी हाई इंटेंसिटी, एंड देन धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होते चला जाते हैं, एंड कोरोना एज सच कभी खत्म नहीं होगा। अभी कैसे कॉमन कोल्ड हो जाते हैं, नोबडी डाइज बिकॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। बीमारी आता है, 2-3 दिन का मजा लेके निकल जाते हैं। कोरोना विल ऑल्सो रिमेन समथिंग लाइक दैट, कि उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पैंडेमिक का एंड कब हम बोलेंगे, जब ऐसा टाइम आएगा कि काफी महीनों तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस बीमारी की वजह से लोग नहीं मर रहे, द डेथ रेट शुड कम टू 0, देन वी कैन से दैट वी आर सेफ। बट अभी वो स्टेज है ही नहीं, एक जगह कम हो रहा है तो दूसरी जगह बढ़ रहा है, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन, सो गॉड नोस व्हेन दिस विल एंड। ये प्रॉब्लम है पैंडेमिक का। ओके, यस। अच्छा, बाय द वे तेरा आवाज नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम मेरे इधर ही था, मैंने वॉल्यूम एकदम 20 पे रखा, कैसे सुनाई देगा मुझे? ओके। अभी ठीक आ रहा है, डोंट वरी। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया। ओके, तो समझा इसका, वायरसेस का? हाँ। Okay, so viruses are very, very dangerous creatures. That's why viral diseases are more dangerous as compared to fungal and bacterial disease. Okay, plants में भी मतलब ज्यादातर लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे फोटोज दिए, देख, ये देख, प्लांट्स के लीव्स देख कैसे हो गया, एकदम येलोइश पैटर्न पूरा, एंड प्लांट वायरसेस लुक लाइक दिस। ओके, टोबैको मोजाइक वायरस। मोजाइक का मतलब है नेटवर्क, लीव्स के ऊपर ऐसे येलोइश नेटवर्क लाइक पैटर्न बन गया, देख, इसलिए उसको मोजाइक डिसीज बोलते हैं। ओके, तो टोबैको मोजाइक है, टोमेटो मोजाइक है, ऐसे दो है। एंड देन वी हैव लीफ कर्ल डिसीज। लीफ कर्ल में ऐसे लीव्स का बॉर्डर ऐसे क्रम्पल हो जाएगा, उसको लीफ कर्ल बोलते हैं। ओके, ये एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है। देयर आर प्लांट पैथोलॉजिस्ट, ओके, कि जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट्स के डॉक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, तो उनके ऊपर होने वाले डिसीजेस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, समझा वायरसेस का अच्छे से? ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करना। ओके, आज ये लेसन अपना कंप्लीट हो रहा है, तो मैं गूगल क्लासरूम में एक होमवर्क डाल देता हूँ, टू ड्रॉ डायग्राम्स एंड सबमिट। ठीक है, क्या वो डर गई? ओके, नाउ सिमिलर टू वायरसेस देयर इज समथिंग कॉल्ड वायरॉइड्स, मतलब एक कम था जो दूसरा भी आ गया। ओके, अभी वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसे था, देयर वाज अ प्रोटीन कोट एंड देयर वाज अ न्यूक्लिक एसिड मटेरियल। वायरॉइड में क्या है, प्रोटीन कोट भी नहीं है, इट इज ओनली एन आरएनए मटेरियल, बस, मतलब उड़ता हुआ आरएनए पार्टिकल जो बीमारी कर सकते। ओके, तो ये क्या है, इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स, दैट्स इट, उसको वायरॉइड्स करके नाम दिया। नाउ आरएनए इज सच अ कॉमन मॉलिक्यूल, एवरी लिविंग सेल हैज गॉट इट, बट ये उड़ता हुआ सिंपल आरएनए पार्टिकल है, इन्फेक्शियस है, जो वायरस की तरह किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर डैमेज कर सकते हैं, उसको वायरॉइड्स करके नाम दिया। So the first viroid that was discovered, उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, PSTV करके नाम है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ओके, which was discovered by P.O. डेनर, डिनर नहीं है, डीनर स्पेलिंग है। ओके, 1971 में रिपोर्ट किया था। ओके, लो मोलिकुलर वेट, एंड ये वायरसेस से भी छोटा है, तो है क्या, आरएनए पार्टिकल्स है, मतलब छोटे चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, राइट? अब ये पूरा दुनिया अपने घुटनों पे आ गया वायरस की वजह से, राइट? सो दैट इज पॉसिबल, है कि नहीं? तो अभी उसी तरह से वायरॉइड से याद रखना है। एंड नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग न्यू थिंग गिवन, दैट इज कॉल्ड प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या है पता है, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के वजह से हुआ, मतलब अभी आरएनए न्यूक्लिक एसिड कम था जो प्रॉब्लम कर रहे थे, प्रोटीन्स भी आ गए मैदान में। ओके, तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स
ओके, विच कैन कॉज डिसीजेस, उनको नाम दिया गया प्रायॉन्स। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया देखना, मैड काउ डिसीज। ओके, साउंड्स वेरी डिफरेंट, इसका नाम है मैड काउ डिसीज, जो कैटल में होता है। ओके, तो वो कैटल पागल हो जाते कि कुछ होता से है? लिटरली वो पागल करके नहीं होते, बट उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, इसलिए उसको तो नाम दे ब्रेन में वो करेगा। दिया। न्यूरोलॉजिकल बीमारी है ना, नर्व्स को अफेक्ट करता है, हाँ। तो इसके लिए उसका बिहेवियरल चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मैड काउ डिसीज। ओके, सिमिलरली इंसान में है जैकॉब्स डिसीज, ये भी नया नया निकला मार्केट में। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये सो दे भी आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रायॉन्स। दैट्स अ न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस तो इतने सारे हैं कि इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड है। ओके, ब्रेन, न्यूरॉन्स जो नर्व्स है वो अपना बॉडी का वायरिंग सिस्टम है, तो जरा सा सर्किट इधर उधर बदल गया तो एवरीथिंग चेंजेस, राइट? सो मेनी बिहेवियरल टेंडेंसीज स्टार्ट। अभी अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये सब न्यूरोलॉजिकल है, बट दे आर नॉट इन्फेक्शियस, दे आर डीजेनरेटिव डिसीजेस। ओके, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अपना अलग टॉपिक है, उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे बहुत, बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या हो सकता है, राइट? तो अभी प्रोटीन कोट विद अ न्यूक्लिक एसिड वाज अ प्रॉब्लम, ओनली न्यूक्लिक एसिड, ओनली आरएनए वाज अ प्रॉब्लम, abnormally folded proteins are also a problem. So we are surrounded with so many invisible problems somewhere. You never know what can enter. Right? ये सब इसलिए स्टडीज किए, रिसर्च किए तो पता चला कि this can also be possible. Okay? And now towards the end of the lesson, we come to something different, something interesting, and वो है lichens. Okay? अभी viruses, viroids, prions, इनको acellular organism बोल सकते हैं। Lichens आपके do इसमें not come under थर्ड it. पार्ट दिया है ना हाँ, अलग है क्या? वायरसेस का? हाँ, हाँ, मैं हम लोग इसमें डू यू नो करके दे दिया है, थर्ड पार्ट नहीं किया है। लाइकेंस के बारे में। हाँ, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं अलग दिया पढ़ा है बट है, डू यू नो करके दिया। सेम है, बट डू यू नो करके दे दिया। ओके ओके, यहाँ पे डू यू नो पूछा नहीं है, देता बता दिया, यू डोंट नो। नो प्रॉब्लम, बट अच्छा, लाइकेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिड्यूस किया लाइकेंस का, इसके पहले वाले सिलेबस में लाइकेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन था। देयर वर मेनी एग्जांपल्स ऑफ लाइकेंस एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट अभी वो उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो आई विल गिव यू सेपरेटली, डोंट वरी। ओके, एग्जांपल्स यू नो याद तो रखना ही है, राइट? ओके, सो अभी जो लाइकेंस है, दे आर नॉट असेल्युलर और समथिंग, दे आर मल्टीसेल्युलर क्रीचर्स। ओके, लाइकेंस के लिए बोला गया है कि दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर आउट। तो दोनों ऐसे साथ में रह रहे हैं कि दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसको को एग्जिस्टेंस करते हैं। इट्स लाइक एन इंटरकास्ट मैरिज। ओके, इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। इवोल्यूशन में आ गए दोनों साथ में। वी नो वेरी वेल, एल्गे बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटे, फंजाई इज अ सेपरेट किंगडम, बट इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को, यू नो, and they came together, they formed an association. And how do they stay together? Because the alga belonging to kingdom plantae, they have the respective photosynthetic pigment, वो खुद खाना बना सकते हैं। fungi, they are decomposers, they cannot make their own food, but they have very good hyphae and mycelium, so they can absorb the water with the minerals and raw materials and give it to the algae कि मैं खाना वाना बना के रॉ मटेरियल्स ला के देता हूँ, तो खाना बना, दोनों साथ में खाएंगे। That became a lichen. Okay, so it's a symbiotic association. तो उसमें जो एल्गल पार्टनर है जिसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, एवरी लाइकेन हैज गॉट एन एल्गल पार्टनर एंड अ फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गे, है ना? इसीलिए फंजाई में भी फाइकोमाइसिटिस करके आया था, एल्गल फंजाई। तो ये फाइको का मतलब है एल्गा।
फाइकोबायोंट. फाइकोबायोंट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोबायोंट, वो भी याद रखें. एंड जो फंगल पार्टनर है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट. माइको का मतलब है फंजाई, माइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई. ओके, so phycobiont and a mycobiont stay together and they live happily ever after. ओके, तो उसमें जो फाइकोबायोंट है वो मोस्टली होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, वी हैव सीन एग्जांपल्स. और दे कैन आल्सो बी ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइटा जिसको बोलते हैं. ओके, किंगडम प्लांटे में उसका डिटेल्स आएगा, वी विल सी दैट. ओके, तो ग्रीन एल्गे करके होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह होते हैं, वो ग्रीन एल्गे को बिलोंग करते हैं. So either it is a blue green algae or a green algae. Okay, so you understood how they are living together. Okay, so जो lichens होते हैं, okay, see this is how it appears. बहुत सारे, especially in the forest areas, in the monsoons and all, if you go, tree trunks के ऊपर, rocks के ऊपर ऐसा देखा रहेगा, है ना, they are lichens. Okay, बहुत सारे जगह पे दिखते हैं, और फोटोज दिखाता हूँ. थोड़े पत्थर और मिट्टी जैसे होते हैं. हाँ, yes, they are very crunchy type, you can say. सूख जाते हैं, गिर जाते हैं. मैंने Actually, किया है lichens. टच. हाँ, yes. हाँ. And there is one species of lichen which we consume also. Okay, अब उसका कुछ नाम है, दगड़ फूल करके बोलते हैं. It's commonly called दगड़ फूल. It is used as a spice. सांबर वगैरह बनाने में यूज करते हैं, पता है? फ्लावर जैसा दिखता हाँ, है yes. और ब्लैक ब्लैक रहता है, क्लोव के कलर का. Somewhat like that. बताता हूँ, चलो देखते हैं, फोटो हाँ. मिल जाए तो, है ना. So that's called हाँ. एग्जाम्पल. लाइकेंस के बहुत यूजेस हैं. दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली वेरी यूजफुल. यू नो लिटमस पेपर केमिस्ट्री में पढ़ा है ना. लिटमस किसके लिए यूज करते हैं? बेस और एसिड को आइडेंटिफाई करने Correct. के लिए. तो उसमें जो लिटमस पेपर बनाते हैं वो बनाने के लिए लाइकेंस का यूज होता है. देयर इज वन जीनस ऑफ लाइकेन कॉल्ड लेकानोरा, उसमें से लिटमस पेपर बनते हैं. सी दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन्स, कितने सारे. ओके, हर तरह के लाइकेन होते हैं. 3 टाइप के लाइकेन होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस. क्रस्टोस मतलब जो पत्थर के ऊपर एकदम ऐसा क्रस्ट जैसा बना होगा. हाँ. फोलियोस मतलब जो फ्लावरी टाइप रहेगा. फ्रूटिकोस मतलब पूरा प्रॉपर स्मॉल हर्ब जैसा दिखेगा, ये देख. ओके, सो दे आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ लाइकेंस. ये देख, बारिश के मौसम में बहुत क्लियर दिखते हैं, वेरियस कलर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन सब दिखेंगे. बट ऑल लाइकेंस बेसिकली आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. ओके, एंड उसमें ये वाला मैं बता देता हूँ, लेकानोरा. ये है जिसमें से लिटमस पेपर बनते हैं, लेकानोरा. ओके, बहुत सारे स्पीशीज है इसके. ठीक है, देन आई विल शो यू दिस वन. ये जो ब्लैक कलर के होते हैं ना, सांबर में डालते हैं, मैंने बताया. दिस इज अ लाइकेन. हाँ. आ रहेगा कभी, हाँ. है ना. ये लाइकेन की, हाँ, नेक्स्ट दिखता टाइम है. व्हेन यू हैव इट यू हैव टू रिकलेक्ट. ओके, सो लाइकेन्स जो थे ना, दे आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल बिकॉज इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. ओके, परफ्यूम इंडस्ट्री में काफी यूज होता है. ओके, देन मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेडिसिनल ड्रग्स मिलते हैं इसमें से. उसनिक एसिड नाम का एक कंपाउंड है जो एक लाइकेन से मिलता है, जिसका नाम है उसनिया, जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह के लिए. ओके, देन रोजेला, पामिना, देन यू हैव ओके, आई गिव यू एग्जांपल्स ना. वेट, लाइकेन्स के एग्जांपल्स देता हूँ. ओके, उसनिया, ओके, क्लैडोफोरा, रोसेला, ओके, लेकानोरा, देन okay, आई थिंक ये ठीक है. चलो और मैं थोड़ा निकाल के देता हूँ बाद में.
these are the ones I remember right now. Okay, I'll give you more examples. ठीक है, ये लिख लें, ये 4 एग्जाम्पल. बहुत टाइम हो गया टॉपिक देख के. I'll give you more examples. Okay, एंड लाइकेंस के बारे में बोलते हैं तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दे आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. ओके, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट दे आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. सी लाइकेंस को बोला गया है पोल्यूशन इंडिकेटर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन. पोल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लाइकेंस आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन. ये ऐसे ही जगह पे ग्रो होंगे जहां पे एयर पोल्यूशन एकदम नहीं है या तो बहुत कम. जहां पोल्यूशन ज्यादा है, लाइकेंस विल नॉट ग्रो. So that means if they are present in a certain area, it's an indicator that यहाँ pollution कम. That's why you find it in places like say hill stations, ऐसे dense forest जहाँ पे human habitation ज़्यादा नहीं है, vehicular traffic ज़्यादा नहीं है. So there you find more of these lichens. But बॉम्बे के हाईवे पे बीच में अगर trees grow रहे उसके ट्रंक पे lichen expect करेंगे तो it is not possible. Okay, because हर तरह का pollution है यहाँ पे. तो ये pollution indicators. Okay, they naturally can survive only in those regions where the pollution is nil or very negligible. And बाकी हर तरह के environment में ये मिल जाते हैं. Even in slow clad regions. Okay, वहाँ पर भी अच्छे से मिल जाते हैं. And whenever lichens they grow somewhere, जैसे rocks वगैरह के ऊपर grow होते हैं, तो their thallus introduces certain chemicals in the soil. Fungal hyphae जो soil में penetrate कर रहे हैं rocks में, तो वो कुछ chemicals release करते हैं. उसके वजह से क्या होता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ज्योग्राफी में वेदरिंग के बारे में पढ़ा रहेगा, सॉइल फॉर्मेशन, वेदरिंग एंड ऑल. हैव यू लर्न दैट इन ज्योग्राफी? है ना? तो उसमें क्या होता है कि रॉक्स के ब्रेकडाउन वगैरह होने की वजह से सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो उसमें लाइकेंस काफी हेल्प करते हैं कि दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. एकदम एक झटके में नहीं, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट दे प्ले अ रोल इन दैट. ओके, सो लाइकेंस आर वेरी यूजफुल. सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंड्यूस करते हैं, तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. ठीक है? हाँ, ज्योग्राफी में था. हाँ, बट कट था तो पढ़ा नहीं था. हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो बायोलॉजी का काफी चीजें ज्योग्राफी से भी कोरिलेट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न अबाउट ज्योग्राफी आल्सो, है ना? जैसे बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़ाते हैं, याद है ना? यस. So with that we come to the end of this small lesson. Okay. कैसा लगा ये लेसन? हाँ, अच्छा था. बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा नाम के लिए. Yes, yes, you have to, है ना? तो क्या कर, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है इसके तो अपना नोट्स बना, सॉल्व कर. सॉल्व कर. ओके, सॉल्व कर अच्छे से. ठीक है, पीडीएफ पूरा नीटली क्वेश्चन भी लिख, आंसर भी लिख कंप्लीट. यू कैन रिफर टू द टेक्स्ट बुक. ठीक है, एंड देन उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर. मैं एक ऐसा असाइनमेंट डाल देता हूँ. ठीक है, डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर, सब कुछ है इसमें. देख, ऑल क्वेश्चंस आर देयर, है ना? तो ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तेरे लिए. ठीक है, तो ये कर देगी ना? ओके, नाउ बिकॉज वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेसन, तो मेरे तरफ से इस लेसन का एक रिवीजन. रेडी? देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे लेसन के बेसिस पे. ओके, and then as I told last time कि there will be classification का questions पूछता हूँ. Okay, कि one by one there will be names of organisms on the screen. You have to tell it belongs to which kingdom out of the 5 kingdoms. Okay, already answer दे. देखिएगा ना, पता चलता है कितना करेक्ट है कितना गलत है. अटेम्प्ट कर. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर सकती है तो बाद में, राइट? एंड बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं गूगल फॉर्म का ऑनलाइन टेस्ट बना देता हूँ. ओके, तो आई विल सेंड यू, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है, ऑन द स्पॉट करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा, स्कोर भी पता चल जाएगा.
राइट। तो जो भी स्कोर वगैरह आते हैं मुझे अपडेट कर, मैं अपने रिकॉर्ड में डाल के रखता हूँ, हाँ, है ना। ओके, सो रेडी फॉर सम क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं है, कुछ 17-18 क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने, तो तो आंसर वन बाय वन, ठीक है। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है कि यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स तो है नहीं, और द ओनली वन, तो सारे आंसर तुझे ही देने हैं, हाँ। ठीक है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर, आंसर बोल। Fungi produce mainly by रिप्रोड्यूस। reproduce mainly by reproduce mainly by producing spores. करेक्ट, आंसर इज स्पोर्स। ओके, देन नेक्स्ट। The smallest unit in the here आता है वो yes, this way you will learn pronunciation also. हेरर का ही कुछ तो था क्या कुछ भी बोल के निकल नहीं जाने का। हेरर हायरार्की। का hierarchy हाँ hierarchy of classification is kingdom हाँ, किंगडम स्मॉलेस्ट हो गया। genus दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्नेहा, ये एम्फसाइज करके बताया था ना मैंने। पूरा जो हायरार्की है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये है ना हायरार्की। तो इसमें हाईएस्ट यूनिट इज किंगडम, स्मॉलेस्ट यूनिट इज species हाँ वो टेबल यस। वो ऑर्डर में कैसे याद रखना पता है, किंगडम, डिवीजन, ओके, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, आई विल शो यू दिस वे। मैं बताना भूल गया था, ट्रिक बताता हूँ मैं। यू हैव किंगडम, डिवीजन, ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, करेक्ट। अभी डिवीजन की जगह एनिमल्स में हम फाइलम यूज करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में कैसे याद रखना है कि विच वन कम्स आफ्टर विच वन, इसका एक सेंटेंस बना दे। ओके, मीनिंगलेस सेंटेंस है बट बनाते हैं। किंग देवेंद्र केम ओवर फॉर अ ग्लास ऑफ सोडा। ओके, अब तो सोडा की जगह शरबत डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स के लिए कौन आएगा, किंग परमानंद केम ओवर फॉर अ ग्लास ऑफ सोडा। बस वही बदलना है, ऐसे याद, हाँ ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। बट ये किस लाइन में आएगा हाँ वो याद रहेगा। Each kingdom consisting of many divisions, each division consisting of many classes, class के बाद order, ऐसे hierarchy याद रखना। So the highest one is kingdom, smallest is species. This is a very important point. ठीक है, याद रहेगा अभी। हाँ Next question. bacillus is rod shaped bacteria Correct. It is rod shaped. Okay. Spherical को क्या बोलते हैं, spherical को कॉमा bacillus है हम्म, विब्रियो कॉमा वाला विब्रियो हाँ हाँ, कोका कोको कोको bacillus कोकस 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 हाँ यस, कोकस। तो क्या कर रही थी, कोकस कोका क्या कर रही थी। नहीं वो कोको कोकस का कोको बोला मैंने यस, कोको नहीं है, कोको किधर, वो नारियल का पेड़ है। ओके, नेक्स्ट। In taxonomic hierarchy, a family consists of many genera. करेक्ट, वेरी गुड। जेनेरा इज द प्लूरल ऑफ जीनस, है ना। गुड, नेक्स्ट।
Likings are called as ecological indicators. Very good. Correct. अभी अभी पढ़े. Next. In Mangifera indica, Mangifera is the genus. Very good. Correct. और इंडिका क्या है? Species. Correct. Next. Bacteria possess heterocysts which help in nitrogen fixation. It is not bacteria. Fungi. No. नाइट्रोजन फिक्सेशन फंजाई नहीं करते. Lichens तो नहीं है. बचा कौन? Cyanobacteria. Answer is cyanobacteria. Remember. But Nostoc bacteria भी इसमें था ना? बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बट दे डू नॉट हैव हेटेरोसिस्ट. ओके, उनके सेल्स में वो एंजाइम्स रहते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, एंड दे डू नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे याद रह जाता है, एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक यू रिमेंबर बेटर, राइट? याद. गुड. नेक्स्ट. Unicellular prokaryotes belong to Protista. No, Monera. यस, मोनेरा. ओके, नेक्स्ट. Multicellular decomposers belongs to kingdom fungi. करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट. So the क्वेश्चन फॉर Basidomycetes are also called as sac fungi. सैक Ascomycetes पढ़ा नहीं क्या are पहले? also called as sac fungi. नहीं, हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ सभी बोल रही है. आंसर इज एस्कोमाइसेटिस. यस. अच्छा, फाइकोमाइसेटिस को क्या बोलते हैं? algae fungi. एल्गल फंजाई. algal fungi. ओके. वो बेसिडियोमाइसेटिस. को club करेक्ट. fungi. वेरी गुड. एंड लास्ट वन क्या था? फोर्थ वन? Deutetomycetes. ड्यूटेटो. ड्यूटेरो. Deuteromycetes. हाँ, Deuteromycetes. ड्यूटेरोमाइसेटिस. उनको क्या बोलते हैं? उसको imperfect. वेरी गुड. गुड. नेक्स्ट. Helianthus anus is the scientific name of sunflower. करेक्ट. सनफ्लावर. बनाना का क्या है, कुछ याद है? मुझे पढ़ना रैट का पड़ेगा. याद है, रैटस. अच्छा, बहुत डिफिकल्ट वाला याद रखिए. नेक्स्ट. Mushroom belongs to Basidiomycetes. करेक्ट. बेसिडियोमाइसेटिस. गुड. The red tide in water bodies is mainly caused by diatom. रेड टाइड. Dinoflagellates. करेक्ट. इट इज डाइनोफ्लैगेलेट्स. ओके. गोनियोलेक्स वो नाम था ना? हाँ. ओके. नेक्स्ट. The viroid, which was discovered first, caused a disease in potato. करेक्ट. PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड. नेक्स्ट. The causative agent of malaria belongs to kingdom
Protesta. Very good. What is the name of the causative agent? Clostridium. कोई भी स्टेडियम नहीं बनाना चाहिए. प्लास्मोडियम याद है? हाँ, प्लाज्मोडियम. हाँ. ओके, उसका और राइमिंग याद रह जाता है, कुछ भी बना देते हैं उसका. हाँ. ओके. एक साथ इतने सारे आ गए. इसलिए पहले कर लिया तो रिवीजन में टाइम लगेगा, तो यू कैन लर्न प्रॉपर्ली, है हाँ. ना. हाँ. In plant classification, Malvaceae is an family. नो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद है? व्हेनेवर द नेम Order. एंड्स विद एल्स, तो वो Ales ऑर्डर to है. order. Sir. ओके, फैमिली का नाम एंड होता है CEAE. ओके, हाँ. नेक्स्ट. Fungal cell wall is made up of chitin. काइटिन. हाँ, chitin. ओके, चिटिन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट. Hibiscus rosa sinensis belongs to साइनेंसिस. family. Sinensis belongs to family. Solanaceae. मालवेसी. Rose. Malvaceae. ओके, CA नहीं बोलने का, C. मालवेसी, सोलानेसी, ऐसे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. Extremophiles belongs to Archaebacteria. करेक्ट, वेरी गुड. आर्कीबैक्टीरिया अंडर मोनेरा. राइट. मजा आया क्वेश्चंस? अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो जाता है. हाँ. तो जरूरी नहीं कि हमेशा पढ़ के आने का फिर आंसर करने का. दिस वे इफ यू आंसर यू रियलाइज फॉर योरसेल्फ कि कितना मुझे याद है करेक्ट, है ना. याद है थोड़ा तो. अच्छा खासा बोलिए. वेरी गुड, अप्रिशिएट. ऐसे ही प्रैक्टिस कर तो और मजा भी आएगा. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. ठीक है, एक एक करके ऑर्गेनिज्म के नाम आएंगे. जस्ट टेल द नेम ऑफ द किंगडम. मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल. ओके, इनमें से कोई एक उसका आंसर है. ठीक है, रेडी. फर्स्ट वन. इसका नाम कौन? रीड कर पहले. Aspergillus. करेक्ट, एस्परजिलस. बोल. बिलोंग्स टू विच किंगडम? Plant. नो. Protista. नो, बाकी तीन भी बोल दे. एनिमल में नहीं होगा. हाँ, इट्स अ फंजाई. मोनेरा में भी नहीं है. पंजाब. फंजाई. ओके, एस्परजिलस. इसका ना ये भी है ना, वेजिटेबल ऐसा. वो एस्पैरागस. ओके. एस्पैरागस वो अलग है. अच्छा, यू गॉट कंफ्यूज विद दैट. हाँ. ओके ओके, नहीं, वो एस्पैरागस है, वो अलग है. दैट्स कॉल्ड शतावरी. दैट्स अ डिफरेंट वेजिटेबल. गुड. अच्छा, कभी मैंने भी ऐसा नहीं सोचा. नेक्स्ट. वीट. ये खाने का है ना. हाँ, एक ही टाइप का वीट है, नो अदर वीट. इट इज. आंसर क्या है? प्लांट. प्लांट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. कॉकरोच एनिमल. वाह, नो डाउट. पेनिसिलियम बैक्टीरिया. मोनेरा. नो. फंजाई. इट्स अ फंजाई. दिस वाज द वन ना जिसमें पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया. हाँ. नेक्स्ट. प्रोटिस्टा. करेक्ट, प्रोटिस्टा. ओके, ये बोल सलमान. सैल्मोनेला. मोनेरा.
It is Monera. It's a bacteria. Right? Next. Monera. इसका ये नाम भी रीड करो. I want to listen to your pronunciation. Agrobacterium. Correct. Agrobacterium monera. Okay. ये नाम भी बोलो. कॉकरोच कितना कॉन्फिडेंटली बोली खुशी से वैसे. एंटा कौन सा ये भी ना. हाँ. डाइटम्स. Diatoms. फंजाई. No. प्रोटिस्ट. It is protista. Okay. Plant like protist. Right? Next. कोकोनट प्लांट. Plant. No doubt. Then. कैक्टस प्लांट. Very good. Yeah. मशरूम फंजाई. Fungi. Correct. वेल एनिमल. Very good. नॉस्टॉक. फंजाई. No. प्रोटिस्ट. No. तो मोनेरा. Very good. Monera. It's an example of a cyanobacteria. No start. तो Monera. ठीक है. Okay. Next. पैरामोशियम प्रोटिस्टा. Correct. एनाबीना. प्रोटिस्टा. Correct. जैसे अमीबा पैरामीशियम बार बार बोलते हैं ना, उसी तरह नोस्टॉक एनाबिन मोस्ट कॉमन साइनोबैक्टीरिया. ओके. सैकेरोमाइसिस फंजाई. करेक्ट. कॉमन नेम क्या है सैकेरोमाइसिस का? ईस्ट. वेरी गुड. दिस वन. वीनस फ्लैट प्लांट. करेक्ट. गुड. हो गया. ओके. कैसा लगा? अच्छा था. अच्छा है ना? rather than just हाँ. listening to things, it's better you keep on answering also, right? तो अच्छा खासा learning experience होगा, है ना? And now you'll be in a more enthusiasm कि चलो बहुत कुछ याद रखना है and अच्छे से चीजें याद भी है, right? Good. Without learning you were able to answer so much. That is very good. तो अभी प्रैक्टिस करना है. You will be able to remember. तुझे वो बेकार में डर लग रहा है कि मैं कैसे याद रखेगी करके. You are remembering so much nicely, right? अब लिख लिख के प्रैक्टिस कर. स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन सब तो हो जाएगा. अपने घर के दीवारों पे सब लिख देने का कुछ है. मुझे एक डाउट है. पेनिसिलियम और वो कौन सा एग्रोबैक्टीरियम था, उसमें लास्ट आईयूएम था, तो दोनों तो अलग अलग थे ना. लाइक एक हाँ. फंजाई से था और एक फंजाई. एग्रोबैक्टीरियम इज अ बैक्टीरिया मोनेरा. ऐसा कुछ नहीं है कि नाम सिमिलर एंडिंग रहेगा तो सेम किंगडम रहना चाहिए, ऐसा कुछ. देयर इज नो सच रूल. ओके. गुड क्वेश्चन. बट ऐसा कुछ रूल नहीं है. वो सिर्फ उसका नाम है ना इसके लिए. ओके. गुड. So with that, we have 2 feathers in our caps. Okay, out of the 16. So 2 हो चुके हैं. तो अभी take a look at the remaining 14 topics and बोल कौन सा स्टार्ट करना है. इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर लेते हैं. नहीं मेरे लिए क्या है, अभी सब कुछ तो पढ़ना ही है. है ना. आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो पढ़ा दो. ठीक. अभी अगर पूछा जाए वो तो कॉकरोच वाला ये छोड़ छोड़कर कुछ भी बोल. अभी इमीडिएटली कॉकरोच तो नहीं स्टार्ट करना है. हाँ. राइट. बोलो. हाँ. कौन सा वो मतलब किस टाइप का टॉपिक पढ़ना है अभी, जैसे एग्जांपल्स वाला ही पढ़ना है या कुछ अलग पढ़ना है? अलग. अलग. ये इतना याद हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल वाला. एग्जैक्टली. तो शैल वी डू ह्यूमन न्यूट्रिशन? हाँ. चलेगा या हाँ. फोटोसिंथेसिस ऐसा कुछ पढ़ना है? ह्यूमन न्यूट्रिशन. ह्यूमन कौन सा न्यूट्रिशन. बोले सर पढ़ाना. हाँ. और एक्चुअली देखा जाए ह्यूमन न्यूट्रिशन थोड़ा भी तेरे लिए फायदा रहेगा बिकॉज इफ यू आर हैविंग दैट सीईटी एग्जाम,
हाँ, तो 10th स्टैंडर्ड का कुछ अभी हिस्सा बोल इसमें रहे आएगा। है कि नहीं वो भी नहीं फिक्स है। बाय द टाइम दे विल डिसाइड ना, ऊपर की अपना मार 11th रहे। स्टैंडर्ड हो जाएगा आई थिंक। है ना। तो हाँ कुछ भी कंफर्म नहीं, दिस कोविड हैज डैमेज योर एंटायर प्लानिंग एंड ऑल कंप्लीटली, है ना। तो उनको हाँ जो करना करने दो, अपना टारगेट पता है कि सब पढ़ना है, सब समझना है, बिकॉज यू वांट टू मेक अ करियर इन दिस सब्जेक्ट, राइट। वो टारगेट रख के सब पढ़ना है। 11th का एग्जाम, 12th का एग्जाम जैसा होगा वैसा, दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो अभी ये क्यों मैं टॉपिक सोच रहा हूँ, बिकॉज सी अगर सपोज हम लोग सीईटी कुछ रखते हैं, ओके, तो यू विल हैव दीज टॉपिक्स। इसका कुछ हिस्सा ना 10th में भी था, ओके। तो इट विल बी लाइक अ रिविजन फॉर यू नाउ, कि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में तो अभी फायदा हो जाएगा। आई वॉज थिंकिंग अबाउट किंगडम एनिमेलिया ऑल्सो, बिकॉज वो 10th में भी था, बट फिर वापस वही एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत आएंगे, तो सेकेंड लेसन हमने पूरा एग्जाम्पल्स का ही देख लिया, राइट। तो फर्स्ट यू डाइजेस्ट दैट, right? By the time we will do the digestion of food, and then we can go to some other topic like that. Okay, and my sister is sitting here. She was suggesting cell structure and organization. Okay, वो लेसन करना है करके, बट वो काफी वास्ट टॉपिक है, एंड अपनी तरह लेवल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो एकदम बिगिनिंग में बहुत हैवी टॉपिक थोड़ा, बिकॉज उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। सी एग्जाम्पल्स का कैसे है वो लर्न करना, मोर देन अंडरस्टैंडिंग इट इज मेमोराइजिंग द नेम्स, राइट। बट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हम एक दो टॉपिक के बाद आएंगे फिर, एंड सेल स्ट्रक्चर पूरा करने के बाद हम लोग सेल डिवीजन भी कर लेंगे, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सेल डिवीजन तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड में भी था, आई वांटेड टू डू दैट, बट देन सेल स्ट्रक्चर करे बिना सेल डिवीजन पे जाना सही नहीं, तो वी हैव टू गो इन दैट ऑर्डर। तो फिर 11th में कैसे दिया सेल स्ट्रक्चर? हाँ, अभी वो तो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे कैसे दिया है, तो वी कांट हेल्प इट। ओके, इसीलिए सेल स्ट्रक्चर पहले करना ठीक रहेगा, उसके बाद सेल डिवीजन पे जाना, सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक विल बी वेरी गुड। ओके, एंड सेल स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, वो टाइम भी लगेगा, ठीक है। दैट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोकेमिस्ट्री, ये तीन लेसन बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज दे आर द बेस फॉर ऑल द फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग इजी है, एंड मोस्ट ऑफ इट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑल्सो, राइट। बचपन से इतना खाना खाते आ रहे हैं, तो वी नो व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, एंड समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा वैरायटी में करेंगे तो मजा भी आएगा, है ना, राइट। सो ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशन, बोल। Process of food digestion. No, See, when it is about food, is it only for digestion? no. Okay, chalo, we'll start with something really very simple. Okay, why do we eat food? For But energy. correct, we eat food because first thing, body requires energy. Now see, the name of the lesson is human nutrition, तो यहाँ सिर्फ हम human beings के point of view पढ़ रहे हैं, okay, so we are not talking about other plants, animals and all, okay, it's only about human food. So we eat food because we want energy. Secondly, और क्यों खाते हैं खाना, ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे चलो खा दिए, that also happens. पेट भरना चाहिए इसलिए। सिर्फ पेट भरना मतलब क्या, just because you have a balloon inside it doesn't mean that you have to keep on swinging it. वो तो एक ऑर्गन है, पेट में खाना नहीं हो तो वो एक हमें सेंसेशन देता है कि यू आर हंग्री, सो व्हेन यू ईट फूड योर हंगर इज सैटिएटेड, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल रीजन, राइट। जैसे एनर्जी चाहिए वो एक रीजन हो गया, और क्या रीजन है, व्हेन यू वर बॉर्न यू वर दिस मच, नाउ यू आर दिस मच। For nutrition. हाँ, ये न्यूट्रिशन है।
nutrients. Nutrients are the chemical substances present in the food that you consume. बोल. बड़े होने के लिए. उसको क्या बोलते हैं? करंट बोल रही है. Growth. Of course, growth. Right? When you eat food, you grow. है कि नहीं? Right? So growth is followed by which one? Development. Correct. First lesson में था ना? Right? Growth and development. Right? Next. और क्या reason है? R for respiration. हम लोग खाना इसके लिए नहीं खाते कि हमें रेस्पिरेशन करना है. रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे R क्या? If you get a cut or a wound on any part of the skin, to some extent it is able to heal itself. है ना? इनिशियली कट होगा तो ब्लीडिंग होगा, बट वो भर जाता है. क्या होता है उसमें? What is the body doing? ये इंग्लिश का गेम लग रहा है ना? हील हो जाता है क्योंकि तो उसको क्या बोलते हैं? रिपेयर. हाँ. Getting it? Because there are nutrients in the food that you eat. To some extent, our body is able to repair the damage caused. Getting it? So repairing. What else? और क्यों खाते हैं हम खाना? I for don't say ice cream. These are the four main reasons why we eat food. अभी थोड़ी देर पहले कोविड-19 के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वर्ड आया. Yes, it is immunity. Correct? तो ये चार मेन रीजंस है कि खाना जब हम खाएंगे तो अपने सेल्स फंक्शनिंग रहेंगे, तो वी विल हैव आवर ओन इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिसऑर्डर, एनी डिसीजेस. तो ये भी खाने की वजह से. तो ये चार रीजन है जिसके लिए हम मेनली खाना खाते हैं. पेट भरने के लिए करके नहीं होते. ओके. दूसरा किसी बैच में मैं पूछता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं? खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे. ये कौन सा आंसर हुआ? Okay, that is obvious. Any life process, if you don't do, the ultimate result is comma then full stop. Okay, but especially why we eat food is because of this. Okay, so this particular lesson, that is human nutrition, talks about all this. Okay, what is food? Why it is necessary to eat food? What are nutrients? Okay, and when you talk about the word nutrition, what exactly it means? Okay, it is associated with our digestive system, that's for sure. Okay, but along with that, how should we understand nutrition? It is the sum total of 5 different processes which is associated with the digestion. So overall उसको हम बोलते हैं nutrition. So what are the different 5 steps of nutrition? I'll write here. The 5 steps of nutrition. Okay, कौन से 5 स्टेप हैं? बोल. फर्स्ट वन, पहले जस्ट ओवरव्यू देख लेंगे, देन वी हैव टू डिस्कस ईच वन इन डिटेल. I for again. It is ingestion. Yes. Ingestion. Ingestion. Last में ingestion. हाँ वो पहले खाएंगे ना. हाँ. तो पहले ingestion. Okay, ingestion means eating or taking enough food. Okay, and obviously through the mouth, right? Second step, what is that? Digestion. Digestion. Okay, second step is digestion. तो यहाँ पे 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन.
Okay, so there are digestion taking place in different parts of the body. Okay, एक ही जगह पे पूरा डाइजेशन एक साथ नहीं होता, इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस, वो पूरा डिटेल में हम देखेंगे. ओके, थर्ड स्टेप इज जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड. अमीनो. जब डाइजेस्ट होता है सो देयर आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड. जैसे हम जो खाना खाते हैं तो उसमें होते कार्बोहाइड्रेट्स. अमीनो एसिड्स. हाँ, खाना खाते हैं तो उसमें अमीनो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट. होते हैं, फैट्स होते हैं. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज, फैट्स के ब्रेकडाउन से बनेगा फैटी एसिड्स, एंड प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनेगा अमीनो एसिड्स. So during digestion, for amino acids, fatty acids, and glucose are produced. And whenever they are produced as a result of digestion, they are absorbed. Because the nutrients should be able to go to every cell of the body. जो हम खाना खाते हैं वो खाना शरीर के हर पार्ट में नहीं जाते हैं ना. अभी खाना खाने के बाद हम उल्टा खड़े रहते हैं क्या, खाना ब्रेन में भी जाए? नहीं, जड़ेंगे. वो खाना एक ही जगह जाए, इट विल गो वाया स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, जहाँ डाइजेशन हो जाएगा. बट उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड एब्जॉर्ब करके इट विल पास इट ऑन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो द फूड डजंट गो टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड दे गो टू ईच एंड एवरी पार्ट. तो फॉर दैट एब्जॉर्प्शन. एंड इसका इसका मीनिंग है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोसिएशन है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, because it is the blood which is absorbing and passing on to every part of the body. Okay, now when the food reaches each, the nutrients will reach every part of the body. What is the next step? In every part of the body, in every cell of the body, what happens to these nutrients? ग्लूकोज का क्या होता है, अमीनो एसिड्स का क्या होता है, what happens? स्टोर हो जाते हैं सिर्फ स्टोर हो जाते हैं, और यूज. रीयूज. इसको बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन. मतलब वो यूज होता है, रीयूज नहीं. दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन. यस, अच्छा यूज बोली, ओके चलो यू आर करेक्ट. बट उसको एसिमिलेशन बोलते हैं. ओके, कि मतलब उसका ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करते हैं. ओके, या ऐसा किसी तरह से हम उसको वहां यूज करते हैं उस सेल में. दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड व्हेनेवर एनी सच प्रोसेस टेक्स प्लेस देयर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड. उसको बोलते हैं इजेशन. ओके, तूने सबसे पहला स्टेप ही इजेशन बोल दिया. Okay, this is the fifth step, that is digestion. So all these five together makes our nutrition. कि कैसे हम कंज्यूम करते हैं एंड कैसे हम उसको यूज करते हैं. They are the 5 steps of nutrition. अच्छी तरह समझा? ठीक है, ओके गुड. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पहले let's discuss about the different types of nutrients. Okay, what are the different types of nutrients? Protein. See, Carbohydrates. types of nutrients. Okay, there are basically 3 types. Okay, first one is called energy giving nutrients. Okay, energy giving मतलब इन nutrients का main function है to provide energy.
ओके, तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट एंड वन मोर फैट्स। fats, correct. Okay, now between carbohydrates and fats, which one gives more energy? फैट्स Yes, 9 था समथिंग, और कार्बोहाइड्रेट का 4 था। very good. 4.5 and 9.5. Okay, kilo calories per gram पूरा बोलना है. हाँ, Okay, yes. KCAL। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है we call them as instant sources of energy. क्यों? एनर्जी कम देता है बट इंस्टेंटली, इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम टू गिव दैट एनर्जी. Okay, on the other hand the fats, they are gradual, they give energy slowly, they give large amount but they will be slow. Okay, that's the reason जो sports persons होते हैं, okay, वो लोग between like when there is a match or something going on and बीच में जब break मिलता है, so they prefer to have more of carbohydrates. They will have banana, they will have fruit juices or drinks. Okay, वो लोग बैठ के पिज्जा बर्गर नहीं खाते. Okay, why? What will happen if they have more of fats? थक जाएंगे वे। थक जाएंगे, बुरी तरह थक जाएंगे. नहीं थकेंगे नहीं, मतलब they will take more time to digest that and डाइजेस्ट। हाँ वो drowsiness आएगा. कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी मिल रही है इंस्टेंटली, तो दे विल बी फ्रेश टू कंटिन्यू द गेम. ओके, सिमिलरली इफ अ पर्सन इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, कभी हम ऐसे किसी पेशेंट को देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो क्या ले जाते हैं उनके लिए नॉर्मली? फ्रूट्स। फ्रूट, बिस्किट्स, राइट. बस टेक्निकली तो फैट्स लेके जाना चाहिए ना, ज्यादा उसमें होता है। नहीं ज्यादा रहता है, बट क्या होता है कि पेशेंट इज ऑलरेडी वीक, उसके पास एनर्जी नहीं है, वो खुद सलाइन पे चढ़ा हुआ है. गेटिंग इट? तो उसको उतना उसके पास एनर्जी ही नहीं है कि इतना सारा फैट्स डाइजेस्ट कर सके. गेटिंग इट? सो कार्बोहाइड्रेट्स विल बी गिविंग दैट एनर्जी. सी डॉक्टर्स जब सलाइन में चढ़ाते हैं बोलते हैं सलाइन क्या है वो, इट इज ग्लूकोज. गेटिंग इट? तो उससे क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा. बिकॉज अगर शरीर बहुत वीक है, टायर्ड है, तो उसके पास वो ताकत नहीं, डाइजेस्ट करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना. तो वही नहीं. इवन एट होम ऑल्सो समटाइम्स व्हेन यू फॉल इल, बुखार आ गया, टायर्डनेस हो गया, लाइक पूरा दिन बस बेड पे पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, so that time you cannot have heavy food. तो हम लोग कैसे खाना प्रेफर करते हैं, दाल खिचड़ी खा लिए कि थोड़ा थोड़ा ही सही बट खा लिए तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलेगा. यू कैन हैव फ्रूट्स या नारियल पानी पीते हैं, राइट. तो दे आर द वंस विच विल गिव यू एनर्जी इंस्टेंटली, मोर एनर्जी विल बी गिवन. नॉर्मल सिचुएशन में हैवी फैट्स वगैरह खाओ, और इफ यू आर इन अ वेरी कोल्ड प्लेस तो वहां पे ठीक है, बिकॉज वहां पे फैट्स चाहिए. बिकॉज फैट्स क्या है, एनर्जी भी देता है, एट द सेम टाइम वो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की तरह जमा होकर इंसुलेशन का भी काम करता है. सो इन कोल्ड प्लेसेस यू नीड दैट, you need the insulation at the right places to stay warm. Okay, so वहां पे वो कर सकते हैं. तो according to the locality one can consume it. अभी चाइना में you know very well what kind of animals are eaten. ये नॉन वेजिटेरियन होना अलग बात है, इंडिया में शरीफ नॉन वेज, चिकन मटन फिश, ठीक है. बट व्हाट इज दिस, पैट्स खा रहे हैं, स्नेक्स खा रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं, राइट. सो एनीवेज लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट. तो यू नो वेरी वेल कि उनके कंट्री में मैक्सिमम ठंडे इलाके, so they can afford to consume that. इंडिया में मैक्सिमम गर्म इलाके, तो इफ यू हैव मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एनिमल फैट्स, उसमें डाइजेशन में तकलीफ होगा. इसलिए कल्चरली वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ अपनी भी कंट्री में. खाते, हाँ खाते हैं, yes. डाइजेस्ट भी होता रहेगा उनका। करना पड़ता है. अब खा लिए ठूस लिए तो कैसे ना करके डाइजेस्ट करके निकालना ही पड़ेगा. ओके, यू नेवर नो. बट इमेजिन दे हैव दो स्नेक्स एंड पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, राइट. सो देयर इज मोर देन अ लिमिट, वी कैंट इमेजिन. कोई बैठ के ऑक्टोपस खा रहे हैं पता नहीं क्या, right? And especially it is very challenging for pure vegetarians like me to imagine. Okay, some plants तक ही ठीक है.
राइट? पका के भी नहीं खाते, रॉ खाते। रॉ भी खाते हैं ना, so they are not non-vegetarian, they are carnivores. Okay, you can say that. Anyways, so we were talking about the nutrients part. So fats give you energy slowly, carbohydrates give you instantly. Examples बता food items का जिसमें हमें carbohydrates मिलते हैं, अभी बोले ना वैसे. कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट जूस, Fruits, एप्पल yes, all types of fruits, correct. Apples contain good amount of carbohydrates, all types of sugars are there. और राइस राइस में भी होता है, स्टार्च होते हैं, करेक्ट. इवन और wheat, वीट्स। yes, wheat, right. What about fats? फैट्स में पिज्जा, बर्गर। हाँ, नेचुरल सोर्सेस, कोई पेड़ पे पिज्जा नहीं मिलते. के नेचुरल में नेचुरल सोर्सेस. पोटैटो। पोटैटो में थोड़ा फैट्स होता है, यस. देन पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हो गया, स्टार्च ही होता है ना मोस्टली उसमें. हाँ, यू आपने कैन से पिछले बार मिल्क. वही पिज्जा बर्गर ही दिखाया था। हाँ, लेकिन मिल्क मिल्क है ना. मिल्क बोलो, मिल्क। ऐसे फूड आइटम्स बहुत हैं, बट मैं नेचुरल सोर्सेस की बात कर रहा हूँ. चीज। चीज भी बनाया जाता है ना. हाँ, मिल्क इज तो मिल्क दूध से प्रोडक्ट हो गया बनाया ना, जाता हाँ, है। तो मिल्क हो गया एक. एंड देन यू कैन सी इवन टू सम एक्सटेंट सीड्स. बहुत सारे सीड में ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर के सीड में ऑयल है. हाँ। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल्स विच यू ऑप्टेन, फिश लिवर ऑयल, उसमें फैट्स होते हैं, करेक्ट. ओके, तो ये हो गया एनर्जी गिविंग. सेकेंड टाइप इज बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन। करेक्ट. उसमें होता है प्रोटीन्स. ओके, नाउ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. And that's the reason it is said that for small children, proteins have to be given more in the diet, right? Because they are growing. तो उनको जितना प्रोटीन्स देंगे उनके शरीर का ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगा, राइट. तो प्रोटीन्स कौन से फूड आइटम्स में मिलता है बता, नेचुरली. मिल्क। आई विल कम टू दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस. मिल्क जो होता है ना, वी कॉल इट एज अ कंप्लीट फूड, बिकॉज उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, तो तो प्रोटीन मिल्क है लीफी प्रोटीन्स. वेजिटेबल्स में। लीफी वेजिटेबल्स में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स. प्रोटीन्स भी होते हैं, बट प्रोटीन्स के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है पल्सेस. ओके, पल्सेस है. यू हैव मशरूम्स, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन इट. फिश में प्रोटीन्स होते हैं, मीट में प्रोटीन्स होते हैं, है ना. ऑल टाइप्स ऑफ मीट प्रोडक्ट्स दे कंटेन प्रोटीन्स. ठीक है. देन थर्ड वन इज, तीसरा कौन सा टाइप है? इट इज regulating and catalyzing. regulating and catalyzing. ओके, तो इसमें कौन सा आएगा? मिनरल्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ओके, अभी मिनरल्स एंड विटामिन्स व्हेन यू कंज्यूम, दे आर नॉट डाइजेस्टेड. ओके, वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं करते. दे आर जस्ट यूटिलाइज्ड एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं तो उनके डाइजेशन के रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं. ओके, एंड ईच टाइप ऑफ विटामिन हैज गॉट इट्स ओन फंक्शन. एवरी मिनरल हैज गॉट इट्स ओन फंक्शन. ओके, हम लोग मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स करके बोलते हैं. ओके, सो सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटीज, सम ऑफ देम आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस क्वांटिटीज, बट ईच मिनरल हैज गॉट इट्स फंक्शन. तो मिनरल एलिमेंट्स कौन से हो गए? जैसे अपना नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. कैल्शियम फॉस्फोरस बोन्स के लिए अच्छा है, राइट. पोटेशियम इज अगेन गुड फॉर बिस्लरी द, भी हुआ ना, कौन सा? बिस्लरी वाटर। हाँ, बोलते हैं ऐसा मिनरल्स होता है करके. सी, नेचुरली वाटर एनीवेज कंटेन्स मिनरल्स इन इट, उसमें थोड़ा एडेड मिनरल्स रहते हैं, इट इज गुड टू सम एक्सटेंट, राइट. एंड देन यू हैव पोटेशियम,
आप इन्हें दांतों के लिए फ्लोरीन अच्छा है, ओके, नमक में आयोडीन डाला जाते हैं। So these are all different minerals that you consume, which are important. मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब भी important है, ओके। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, which are they? और वाटर सोल्यूबल करेक्ट, और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन सा आएगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए, डी, और बाकी ए। बचे बाकी मतलब कौन सा? बी और सी। हाँ, स्मार्ट है। ओके, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें और फर्दर टाइप्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B12 तक है, ओके। ईच टाइप ऑफ अ विटामिन हैज गॉट इट्स ओन कमर्शियल नेम। विटामिन ए को रेटिनॉल, ओके, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ओके, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ओके, B1 नियासिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, ऐसे सबका अपना अपना नाम है। तो दिस आई गिव यू एज अ होमवर्क, विटामिन का पूरा टेबल रेडी कर, ठीक है, ओके। कौन सा विटामिन क्या कमर्शियल नेम है, व्हाट आर द डिफरेंट फूड सोर्सेस एंड नेम्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस, कि कौन सा विटामिन नहीं रहेगा या कम रहेगा तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन डू इट। जैसे विटामिन डी के डिफिशियंसी में रिकेट्स होते हैं, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द बोन्स। तो एवरी विटामिन, एवरी मिनरल इज इंपॉर्टेंट। तो इसका टेबल बना के अपने पास लिख लें, रेडी, ओके। और विटामिन ए नहीं हुआ तो आई का प्रॉब्लम होता है ना। यस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थेल्मिया, ये कंडीशन होते हैं, ओके। सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट फॉर ईच वन, ओके। एंड विटामिन ए का इंपॉर्टेंट फूड सोर्स में आएगा कैरेट, गाजर खाने से आंखों के लिए अच्छा रहता है बोलते और हैं, है ना? साग वो सब आएगा उसमें। यस, ओके। सो लाइक दैट यू कैन जस्ट लर्न सम ऑफ द मेन वंस, ठीक है। एंड देन इनके अलावा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट करके नहीं बोल सकते, बट विदाउट विच फाइबर। एवरी अदर न्यूट्रिएंट इज यूजलेस, एंड वो है तो वाटर। फाइबर भी हुआ। फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज बोलते हैं उसको, कि नेचुरली फूड में ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें खाना चाहिए, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, बट इट पासेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स अवर एलिमेंट्री कैनाल टू बी केप्ट क्लीन, प्रॉपर बॉवल मूवमेंट के लिए, उसको रफेज बोलते हैं। सो देर आर फाइबर्स जिसमें एज यू सेड लीफी वेजिटेबल्स, ओके, दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स, इसलिए खाने पीने के साथ सलाद खाना चाहिए। The more you have these raw fruits and vegetables, you get the fibers. So many times when you get an option कि directly मैं fruits खाऊं या fruits का juice पीऊं, the preferred choice should be directly eating a fruit, because fruit juice में उसके fibers निकल जाते हैं, you don't get that, get it? And especially packaged fruit products तो बिल्कुल ही avoid करना चाहिए, because that is containing a whole lot of acidity regulators, preservatives and whatnot. Once in a while is okay, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, कहीं निकले हो, ठीक है, बट व्हेन यू आर हैविंग अ चॉइस, इट्स बेटर टू हैव द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली, ओके। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये सारे मिनरल्स, विटामिन भी प्रॉपर मिलेंगे, फाइबर्स भी बना रहेगा, एंड मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर। कि ग्रेप्स खा लिए, अब इमेजिन ग्रेप्स खाना अच्छा है या ग्रेप्स का जूस निकाल के पियो? ग्रेप्स ही खाना अच्छा है, जूस निकाल लिया तो उसका सारा फाइबर तो कचड़े में चला गया, right? Similarly, having fruits like pomegranate is very good for your blood. Apples contain good amount of iron, है ना? तो ऐसे, and even onions, raw onions when you have it in salad, so it helps to maintain your immune system. Fever वगैरह reduce करने के लिए बहुत अच्छा है। Okay, आज beetroot भी is, रख देते हैं। हाँ वो अलग बात है, बट खाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। Okay, it is very good because onions इतना powerful है ना, माइक्रोब्स को बहुत अच्छे से दूर रखते हैं। So you must have it. ककड़ी, क्यूकम्बर, टोमेटो, कितना अच्छा पानी रहता है उसमें। वाटरमेलन, नाम ही वाटरमेलन है,
है कि नहीं? पानी का बलून है वो, कितना अच्छा पानी मिलता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में खा लो मस्त, पानी पीने का मन नहीं करेगा। इमेजिन नेचर हैज गिवन यू दिस कोकोनट वाटर। अगर पूरी दुनिया में पानी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है नारियल पानी, राइट? नो अदर थिंग कैन रिप्लेस इट, एंड कोकोनट वाटर इज समथिंग, अगर मैं डायरेक्टली नारियल से पीता हूँ तो 100% इट इज प्योर, बिकॉज वो एक चीज है जिसको हम एडल्ट्रेट नहीं कर सकते, उसका नेचुरल हेलमेट है, फुल्ली प्रोटेक्टेड। राइट? बाकी सारे फ्रूट्स में हम आर्टिफिशियल केमिकल डाल के पकाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। नारियल इज अ इंजेक्शन डिवाइन देते प्लांट। हैं। यस, ओके, वो अमृत है, अमृत। So these are the things one should avail and one should consume. Okay, नारियल पानी को नेचुरल बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं है, इट इज पैक्ड विथ ऑल मिनरल्स एंड विटामिन्स। एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट एंड पुअर मैन्स फ्रूट दैट इज बनाना, राइट? बैचलर्स फ्रूट बोलते हैं इसको। ये बहुत आसानी से छिलके बस खा लो, झंझट ही नहीं है, सीड निकालो वगैरह, राइट? अनलाइक पोमोग्रेनेट, राइट? तो हाँ, उसको पोमोग्रेनेट पूरा जैसे छील के निकालो। उसके लिए थोड़ा फुर्सत में बैठ के प्लान करके, राइट? यस, ओके, एनीवेज। सो वो एक अलग स्टैंड अप कॉमेडी बाद में देख लेना यूट्यूब पर। ओके, सो नेचर हैज गिवन यू एवरीथिंग, सो वी शुड कंज्यूम एवरीथिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और ये सब कैसा है ना कि रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम जितना खाएंगे ना, हम दांतों से चबा के जब खाते हैं तो इवन इट इज वेरी गुड फॉर आवर टीथ एंड फॉर आवर गम्स। ये सब हम फ्रूट्स जूस वगैरह पियेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा। So that's the reason one should always prefer natural products. एक टाइम था जब भी लोग बगान में जाके पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट खाते थे। टुडे वी इन दिस डेज वी कैन नॉट डू दैट, राइट? अभी कितना भी धोके निकालो पता नहीं उसमें कितना पोल्यूटेंट निकलते हैं, राइट? सो वी आर मिसिंग आउट ऑन ऑल दैट एक्चुअली स्पीकिंग, है ना ऐसा? बट एनीवेज, सो जितना पॉसिबल है, एंड खाने पीने के मामले में एक बेस्ट चीज क्या पता है, देयर शुड बी अ वैरायटी इन योर डाइट। ये सारे चीजें अच्छे हैं, रोटी सब्जी अच्छा है, चावल भी अच्छा है, दाल भी अच्छा है, बट एवरी डे यू शुड नॉट हैव ओनली द सेम थिंग, बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा, यू आर मिसिंग आउट ऑन सम न्यूट्रिएंट्स एंड यू आर गेटिंग ओनली सम अदर न्यूट्रिएंट इन लार्ज अमाउंट्स। सो व्हेन यू मेंटेन अ वैरायटी, योर बॉडी इज गेटिंग एवरीथिंग, एंड वैरायटी रहेगा तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं ना, उनको जल्दी से होस्ट कंडीशंस मिलेगा नहीं, बिकॉज हर दिन बदल रहे हैं। गेटिंग इट? सो इट्स ऑलवेज बेटर यू मेंटेन अ वैरायटी इन योर फूड, जितना पॉसिबल हो। आज वड़ा पाव खा लिए तो चलो कल कुछ और खा लिए, बट मेंटेन, दैट इज important. And no doubt you know the importance of water in for our diet, for our body. 70% तो अपना पानी ही है, right? So you should have good amount of water at any point of time. The body should not dehydrate more than a limit, because we lose water continuously in different ways. Sweating होता है, we lose water for while you're exhaling from the nose. Okay, we lose water when we speak a lot. Okay, the water is lost even from the eyes in the form of tears, right? Water is lost during urination and defecation, right? So there are various ways in which water is lost, तो इसलिए उसको रिप्लेनिश करना जरूरी है, अदरवाइज द मेटाबॉलिज्म विल बी badly affected. Okay, so there can be problems like constipation and all, so it is problematic. Digestive system को शांत रखना, पेट शांत तो मन शांत, that is the key, right? So ये बैकग्राउंड हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है? ये भी मैं सेव करके रख देता हूँ, so you can take it. And next time हम लोग क्या करते हैं, we will begin with the human digestive system. Okay, वो पूरा हम लोग स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट्स। नाउ यहाँ ये वाला जो है, दिस हैज टू बी लर्नड इन डिटेल, ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, बिकॉज ईच वन इज, अभी सिर्फ स्टमक नहीं बोलना है, उसके 3 पार्ट्स है। स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, तो मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट जैसा बना के आई विल शेयर, उसमें सब लिखता हूँ अच्छे से। ठीक है, सो ऑल दैट यू हैव टू लर्न। हाँ वो सब है, अभी आएगा डायग्राम्स के साथ, बट पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ।
So एक ओवरव्यू पहले समझ में आएगा, all the structures, the different parts, their locations, okay, and then we will see how each part of every part of the digestive system functions. Especially major focus will be on the digestion, कि कैसे digestive reactions होते हैं, nutrients कैसे बनते हैं, and last part of the lesson will be about nutritional disorders. Okay, कि digestive system से related कौन से तरह के disorders हो सकते हैं. We are aware about many of them. Okay, तो उसके बारे में discussion करना है. Okay, so that will be your lesson. So I think 2-3 terms में ये हो जाएगा, but it is going to be interesting.